Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Welcome to Forward Public School e-learning class 9th. Subject Physics, chapter number 6, Work and Energy. This is the part 1 of our video, Work, and I am your teacher, Najma Khan. Okay students, this is our unit number 6, Work and Energy, and this lies on page number 148. So basically, this is our topic work on 6.1. The basic definition of work is that work is said to be done when a force displaces a body in its own direction. वर्क हमारे पास तब मुमकिन है जब हमारे पास एक फोर्स आती है और वो बॉडी को अपने ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ here this is our x-axis, this is our y-axis, and this is a body. Now if a force comes, यहाँ से for example हमारे पास एक force आती है और इस body के ऊपर apply होती है. Now as a result of this applied force, what will happen to the body? The body will cover a distance like this in this direction, and this body will comes here. Now see that the body was initially at that position. By applying force, the body come towards this position. So the body has moved in the direction of force. The force was applying in this direction and the body also displaces in the direction of the force. So mathematically, work is the combination of force and displacement as you see. यहाँ पे हमने फोर्स लगाई और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो इस ओवरऑल सिचुएशन को हम कहते हैं वर्क. यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास क्या आएगा? ऐसा यूनिट में वर्क का जो यूनिट है वो हमारे पास है जॉल. As we know that whenever we are going to make a unit of any physical quantity, then we have to follow its definition. So the unit of work is the combination of unit of force Newton and unit of distance meter. So 1 joule will be equal to, as we know that we have the Newton is the unit of force and meter is the unit of distance. So 1 joule will be equal to 1 Newton meter. So now, dear students, come on page number 149. Topic is 6.1 work. The scientific definition of work differs in some ways from its everyday meaning. Certain things we think of as hard work, such as writing an exam or carrying a heavy load on level ground, or not work as defined by scientists. हम बेटा जैसे डेली लाइफ में हम समझते हैं कि हम कहते हैं कि मैं बहुत थक गई हूँ स्टडी करते करते, या मैं बहुत थक गई हूँ लिखते लिखते, या मैं बहुत थक गई हूँ ये क्वेश्चन मेमोराइज़ करते करते. तो हम कॉमन लाइफ में इसको काम समझते हैं, बट साइंटिस्ट जो हमारे पास हैं वो इसको काम नहीं समझते. फॉर वर्क in the scientific sense to be done, a force must be exerted and there must be motion or displacement in the direction of the force. साइंटिस्ट के मुताबिक वर्क वो चीज़ है जब आप उस किसी बॉडी पे फोर्स लगाए और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स वो बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तब हम उसे वर्क कह सकते हैं. So work is said to be done when a force displaces a body in its own direction. Work तभी होता है जब एक फोर्स एक बॉडी को अपनी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे. When an object moves distance s in the direction of applied force F, then work W is given mathematically as. जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है और वो डिस्टेंस s की डायरेक्शन में एक बॉडी को मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास वर्क डन हो गया. सो मैथमेटिकली एज पर द डेफिनेशन द वर्क वुड बी इक्वल टू W फॉर वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू S distance. So you can see here in figure 6.1 that this man is applying a force in this direction on that body, and as a result the body also displaces in that direction. So here this would be called as work. Now unit of work, the SI unit of work is the joule, abbreviated J, and named in honor of the 19th century English physicist James
प्रिस्कॉट जॉल। ये हमारे पास क्या है कि एसआई यूनिट में हमारे पास, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि एसआई यूनिट में हमारे पास वर्क का जो यूनिट है वो जॉल है। एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम को लेते हुए वर्क के यूनिट को जॉल का नाम दिया गया। द यूनिट ऑफ वर्क इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर। फोर्स का जो वर्क का जो हमारे पास यूनिट है वो फोर्स के और डिस्टेंस के यूनिट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया है। तो एज वी नो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, सो वर्क इज द कम्बिनेशन ऑफ दीज टू यूनिट्स, न्यूटन मीटर। सो 1 जॉल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। However, force is vector quantity, जबकि हमारे पास क्योंकि वर्क इज़ द कम्बिनेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन फिर अभी हम कह रहे हैं कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। सम टाइम फोर्स इज़ नॉट परफेक्टली अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तब हमारे पास मुमकिन होता है जब हमारे पास फोर्स जब अप्लाई होती है तो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में मूव ना करे। For example, consider the figure in which a box is moving in horizontal. In horizontal direction, and force F is applied making certain angle theta with the horizontal. यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक फोर्स लग रही है एक बॉडी के ऊपर एक्स एक्सिस में, जो कि एक एंगल थीटा बना रहा है, और हमारे पास जो बॉडी मूव हो रही है वो किसी और डायरेक्शन में मूव हो रही है। इन सच सिचुएशंस द फोर्स इज रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस तरह सिचुएशन में हमारे पास जो फोर्स होती है वो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाती है। नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर 6.2 work that here you can see that this man is applying force in this direction while the body is moving horizontally on x-axis in this direction. So there is difference between these two, because in the first case the body was moving along with the direction of the force, but in this case the body is not moving along with the direction of force. So in such situation we have to divide the force into its rectangular components, that is x-axis and y-axis. Now this is making an angle theta with this direction. As we have done in the previous chapter कि हमारे पास जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम फोर्स को डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास वाई एक्सिस पे साइन थीटा आ रहा था और एक्सिस पे कॉस थीटा आ रहा था। तो द सेम सिचुएशन इज अकरिंग हियर अगेन, कैन दिस फोर्स इज मेकिंग एफ कॉस थीटा ऑन एक्स एक्सिस एंड एफ साइन थीटा ऑन वाई एक्सिस। Now you can see that from the figure it is clear that the effective component of force in the direction of motion is F cos theta. Mathematically work done can be written as, now हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम फोर्स तो y एक्सिस पे लगा रहे थे, लेकिन बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट की वो x एक्सिस पे की। इस वजह से हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है वो x एक्सिस की तरफ आ रहा है। सो वर्क विल बी कंसिडर्ड एज F cos theta into distance। अगर हमारे पास बॉडी और फोर्स की डायरेक्शन एक होती तो हमारे पास कॉस की जगह हम साइन थीटा लगाते, क्योंकि हमारे पास फोर्स वाई एक्सिस पे हो रहा था यानी साइन थीटा, और अगर बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो हम यहाँ पे एफ साइन थीटा लगाते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फोर्स साइन थीटा की तरफ आ रहा था यानी वाई एक्सिस की तरफ अप्लाई हो रहा था, लेकिन बॉडी में ने मूव एक्स एक्सिस की तरफ किया, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा कि W इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, take care, goodbye. We will do the example 6.1 in our next video.